महाकाल सबको। एंड गणेश जी को सबसे पहले आप प्लीज़ प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि बिना गणेश जी के हम कोई भी शुरुआत नहीं करते हैं। सो अपने अपने मन में गणेश जी का ध्यान आप कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज आत्म कारका। आत्म कारका। So we'll be going through very scratch. Okay, so I could be explaining that debilitated Jupiter, but we'll be discussing about exalted and debilitated planets in another webinar that's gonna come very soon. So I'll just repeat, please, everyone, just stick to the topic. I mean, so that we can have more of it. yeah, because and Topics are going to follow in due course, so we can ask the specific questions that time, please. क्योंकि हम तो बता देंगे, हमसे पूछोगे तो। Okay, so Atam Karka. Atam is soul and Karka is the significator. The planet which is signifying the soul in your birth chart is the Atam Karka planet. Natural Atam Karka is the Surya, the sun, because sun is the significator of the soul, but we all are going through the different cardinal cycles, which is why the Char Atam Karka, which means the Atam Karka, which could be different in everybody's chart. Now, how to find your Atam Karka? The highest degree planet in your birth chart is your Atam Karka. If the sun is at highest degree, we consider from 0 to 30 degrees. So if the sun is at 29 degrees and no other planet is more than 29 degrees, then your sun would be your Atam Karka. If your moon is at 26 degrees and no other planet is more than 26 degrees, then your moon is the Atam Karka. And same goes for other planets. But here we are not considering Ketu. But in today's video, I will be considering Rahu. Okay? Although if you don't want to, you can just skip that part. But I am considering Rahu here as your Atam Karka. Ketu can never be your soul significator because Ketu has something to do with your past. And if I go on that theory, today's lecture would be on totally different topic, that why Ketu is not considered as your Atam Karka. I'm not going there. But in today's lecture, we will be discussing all the 7 planets starting from Surya. So Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn. These 7 planets and Rahu as Atam Karka. Now we all know that the planets move from 0 degree to 30 degrees. 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ सब प्लैनेट जाते हैं, तो जो प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पर होगा वो आपका आतम कारक होगा. लेकिन इन द केस ऑफ राहु, राहु मूव्स फ्रॉम 30 डिग्रीज टू द 0 डिग्रीज. तो इसमें हम सबट्रैक्ट कर देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ योर राहु इज एट 2 डिग्रीज, वी विल बी सबट्रैक्टिंग 2 डिग्रीज फ्रॉम द 30. 2 माइनस करेंगे 30 में से, आंसर वुड बी 28. सो इफ नो अदर प्लैनेट इज मोर देन 28 डिग्रीज, देन योर राहु विल बी कंसिडर्ड एज योर आतम कारका. ओके, या दैट्स व्हाट. सर प्लीज रिपीट दिस, दोबारा समझा दे. ओके, राहु को समझना बड़ा आसान है. देखो, सारे प्लैनेट्स 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, ठीक है. अब जौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पर होगा वो आपका आतम कारका होगा. लेकिन राहु मूव करता है 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ, तो जितनी डिग्री पर भी राहु होगा उसको हम 30 डिग्री में से माइनस कर देंगे. तो जो डिग्री बचेगी, अगर तो वो हाईएस्ट डिग्री है तो वो आपकी आतम कारका राहु कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर राहु 2 डिग्री पर है तो 30 में से 2 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा. अब 28 मतलब है कि अगर इससे ज्यादा कोई भी प्लैनेट नहीं है, अगर सूर्य आपके 26 डिग्री पर हैं तो राहु 28 पर आ जाएंगे यहां पर. तो यहां पर इस केस में हम राहु को आतम कारका जो है वो जरूर हम लेंगे. या 30 minus 0 degree. Okay, yeah. So whoever wrote this, good. So that's how we'll be finding. Okay, where to find the degrees, मैम? ये एप्लीकेशन में मिल जाएगी आपको. कुनार्क जी, आप एक वो छोटा सा बना के डाल देना.
जी बिल्कुल. स्क्रीनशॉट डाल देना कहाँ पर मिलेगी डिग्री. Right, right. Is it because it is retro? Yes, Rahu and Ketu are always going retrograde. Although there is true Rahu and the mean Rahu. यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. So yes, 30 minus whatever the degree of Rahu is, if that is the highest degree, then Rahu will be your आतमकारका planet. तो अब सबको पता लग गया कि आतमकारका क्या है. Then this logic hold good? No, 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 not for all retro planets. अगर आपका जुपिटर रेट्रो भी है तो भी अगर वो 26 डिग्री पर है तो हम 30 माइनस 26 नहीं करेंगे. ओके, इज दैट पॉसिबल? 2 planets कैन बी आतमकारका? नो, 2 planets कैन नेवर बी आतमकारका. उस केस में हम अलग अलग लेते हैं. सी दोज आर योर डाउट्स. अभी मैं उस पर नहीं जा रहा. पहले अभी सिर्फ इतना समझो कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इज द आतमकारका. ठीक है, ओके. सो आतमकारका basically means the duty of the soul. The duty of the soul. The place where your soul wants you to burn your karmas. The place where your soul wants you to burn your karmas. हो सकता है आतमकार का उस घर में प्लेस हो जहां पर आपने पास्ट लाइफ की मिस्टेक की है. आतमकार का वहां पर प्लेस हो जहां पर पास्ट लाइफ की मिस्टेक की है. बिकॉज जब आप मिस्टेक करते हो तो कोई आपको सिखाने आता है, और सिखाने वही आता है जो आपके सबसे क्लोज हो. एंड लास्ट लेक्चर में हमने पापा ने बताया था कि आतमकार का वो प्लैनेट है जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है. तो ड्यू टू वो शुरुआत से जुड़े होने की वजह से आतमकार का हमें सिखाने आता है, हमारी गाइडेंस बनकर आता है. मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा. हैज एवरीबडी सीन द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर अब्राहम लिंकन? सबने अब्राहम लिंकन की फोटो देखी होगी जिसमें उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है. थोड़ी थोड़ी यहां पर दाढ़ी है, पतले हैं वो. सो दैट गाय इज अब्राहम लिंकन, राइट? बट डू यू नो ही वॉज नॉट विनिंग द इलेक्शंस. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई पीछे से साउंड तो नहीं आ रही ना? No, no, it's all okay. Okay, because there's some noise at my background. So, अब्राहम लिंकन जिनकी दाढ़ी है, जो आपने उनकी फेमस तस्वीर देखी होगी, वो इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे थे. बहुत टाइम उन्होंने कोशिश की पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको कोई सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी. तो एक छोटी बच्ची जिसका नाम था ग्रेस, उसने 15 अक्टूबर 1860 को अब्राहम लिंकन को एक लेटर लिखा कि डियर लिंकन, दैट गर्ल वॉज अराउंड आई थिंक 9-year-old गर्ल. ठीक है, वो आप सर्च आउट कर सकते हो, आपको गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो दैट लिटिल गर्ल, शी रोट अ लेटर टू अब्राहम लिंकन दैट यू शुड ग्रो बियर्ड. आपको दाढ़ी बढ़ानी चाहिए अगर आपको इलेक्शन जीतने हैं तो, बिकॉज बियर्ड विल मेक यू लुक मोर ट्रस्टवर्दी. एट दैट टाइम अब्राहम लिंकन वॉज क्लीन शेव. किसी ने भी अब्राहम लिंकन की क्लीन शेव फोटोग्राफ नहीं देखी होगी, बिकॉज वी नो दैट फेमस लिंकन, द गाय विद बियर्ड, राइट? बट इन दैट केस उस समय पर अब्राहम लिंकन क्लीन शेव थे. एंड उन्हें ग्रेस की ये लेटर मिलती है, जिस लेटर को वो पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस छोटी बच्ची ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने को कहा है ताकि मैं इलेक्शन जीत सकूं, तो आई शुड ट्राई दैट. ना ही सिर्फ अब्राहिम ने दाढ़ी बढ़ाई, बल्कि वो उस लड़की के पास गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा कि इज दिस व्हाट यू वर लुकिंग फॉर? इज दिस गुड इनफ? क्या मेरी दाढ़ी ठीक है? इज माई बियर्ड लुकिंग फाइन? एंड देन ग्रेस अप्रूव्ड इट. ग्रेस सेड yes, this looks perfect, now you would be president of United States. And after the elections he was the president of United States. And in Abraham Lincoln's chart, आतमकारका planet is Mercury. मरकुरी कौन है? छोटी बच्चियां.
He listened to his Atam Karka planet. How many of us would listen to a small girl who is telling us to, grow beard? Would you? I won't. Nobody would. Why would anybody want to listen to a small girl? Because we have the ego factor. हम में मैं है. And that मैं, जिसमें मैं होती है, वो problematic हो जाता है. We should leave the egos aside and listen to our Atam Karka. Because Atam Karka is the true king of your birth chart. Yes, leave ego aside. The Atam Karka is the most egoistic planet, number one, because he is the king of the chart. Okay? Now, if you will disrespect the king won't let you live. You should never disrespect your Atam Karka. You should always try to listen to your Atam Karka. जैसे अब्राहिम लिंकन ने अपने आत्म कारका को सुना, अपने आत्म कारका की एडवाइस ली एंड उस एडवाइस को वर्कआउट किया, तो उनकी लाइफ चेंज हो गई. इसी तरह से यदि आप अपने आत्म कारका को सुने और उनकी चीजों को इंप्लीमेंट करें, तो आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है. Starting from the planets, if Surya, that is sun, if sun is your Atam Karka, what you should do, who you should listen to? You should be listening to your father. And मैंने देखा है 80% केसेस में आत्म कारका सूरज हो तो फादर के साथ नहीं बनती. इनफैक्ट जो भी आत्म कारका हो उस रिलेशन के साथ नहीं बनती. बहुत मुश्किल है उस रिलेशन के साथ बनाकर रखना. आत्मकार का मून है. लिसन टू योर मदर. टेक एडवाइजेस फ्रॉम योर मदर. नाउ इफ यू डोंट हैव दैट रिलेशन एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, कंसिडर somebody as your father, consider somebody as your mother, and then go talk to them, go take advice and respect them like a king, because that particular planet is the king of your birth chart and only the king can help you become the king. The servant can never help you become the king. सूर्य हमने डिस्कस कर लिए. यदि सन आत्मकार का है, यू शुड बी लिसनिंग टू योर फादर, यू शुड बी लिसनिंग टू द अथॉरिटी. ओके, यू शुड बी लिसनिंग टू द गवर्नमेंट बिकॉज दैट इज द सन. अब अगर सूर्य आत्मकारक हैं और आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस ले लिया, आपका गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सरकारी जगह पर आप गए और आपका काम नहीं हुआ, आपको गुस्सा चढ़ा, आपने कोर्ट केस फाइल कर दिया. You are spoiling your Atamkarka. You are fighting against your own king. And if you will fight against your own king, आप शायद छोटी जंग तो जीत जाएंगे, छोटी जंग आप जीत जाएंगे, लेकिन जो बड़ी जंगें हैं वो आप हारेंगे. So don't fight with your Atamkarka, no matter what. Now, if moon is your Atamkarka, listen to your mother, listen to motherly figures. Okay? Now, coming to the third point, if Mars is your Atamkarka, listen to your siblings, especially the younger siblings. Listen to military, listen to army, listen to police officer. आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, just in case you don't have a brother, और आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में पुलिस ने जनरल चेकअप के लिए रोक लिया, and you have everything okay, you have all the documents, you have everything. At the end, you could ask for an advice. जो भी आपकी लाइफ का क्वेश्चन है कि सर बाकी सब तो ठीक है, क्या मैं नॉन मेडिकल ले लूं? So if you ask that from that police officer, whatever the answer of that police officer is, try to implement that thing in your life, because Mars is your Atamkarka. That would be helping you no matter what you do. Now, if Mercury is your Atamkarka, listen to your sister, listen to your bhua, listen to your masi, listen to the short girls, young girls who are less than 11 years of age. Listen to them. देवियां, कंजकें, उनसे पूछिए, उनको अपने लाइफ का क्वेश्चन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा. Listen to the transgenders. Respect the transgenders. Now, if Jupiter is your Atamkarka, listen to your guru. Consider somebody as your guru, or listen to the elder people at your house. Listen to your grandfather, grandmother, great grandfather, if that person exists.
Listen to them. And if you have Jupiter as your Atam Karka, you should be placing the pictures of your ancestors inside your room. And you could even be talking to them. आप उनसे बातें भी कर सकते हैं. उसके बाद यदि शनि सैटर्न आपके आत्म कारका हैं, listen to the people who are lower class. Listen to the garbage man. आपका गार्बेज उठाने वाला बंदा आया है, उसको सैटरडे को कहो रुक जा, चाय पी के जा, उसको चाय पिलाओ एंड आस्क योर क्वेश्चन. अब ऑफ कोर्स उसका इंटेलेक्ट आपके इंटेलेक्ट लेवल से कम होगा, तो उसको आपको सवाल किसी और तरीके से थोड़ा घुमा करके पूछना पड़ेगा ताकि आपको हिंट मिले, और जैसे ही आपको हिंट मिले यू कैन इंप्लीमेंट दैट थिंग इन योर लाइफ. लिसन टू योर सर्वेंट्स, लिसन टू लोअर क्लास पीपल. सो दैट्स हाउ द आत्म कारका वर्क्स. नाउ मैंने 7 प्लैनेट्स को एक्सप्लेन कर दिए. नाउ व्हाट अबाउट राहु? राहु डजंट हैव अ रिलेशनशिप. Although नानके नूनके रेड बुक में यूज होते हैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज थिंग्स हियर. सो in the case of Rahu, listen to the pet. Yes. Okay, I'm gonna tell you a very good story. बड़ी छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको. एक लड़का था, he was living in San Diego and he was homeless. He had no career at all and he saw कि एक क्रो आकर के उसकी बालकनी में रोज बैठता है. एक क्रो उसकी बालकनी में आकर के रोज बैठता है. ही स्टार्टेड फॉलोइंग दैट क्रो कि ये जाता कहां है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज होमलेस. ही सेड वो सामने बालकनी पे रोज आके एक क्रो बैठता है और रोज चीखे मारता है. तो उसने उसको फॉलो करना शुरू किया एंड ही एंडेड अप इन लॉस एंजलस हैविंग अ वेरी ग्रेट जॉब देयर. ही गॉट हिज करियर, ही गॉट हिज हाउस एंड एवरीथिंग ड्यू टू दैट क्रो. ही फॉलोड हिज आत्म कारका. So anybody having Atam Karka Rahu, I always tell them to have a pet at home and talk to that pet. You will see a lot of things will change in your life. Now second thing, do not ever disrespect or fight with your Atam Karka. यदि आप राजा के खिलाफ जाएंगे, अपनी कुंडली के जो राजा हैं यदि आप उनके खिलाफ जाएंगे, आपकी कुंडली ज्यादा राइज नहीं कर पाएगी. You won't be able to rise very much in your life. So, any doubts still here? Venus पर है क्या? Oh yes, great observation, thanks. So, if the Venus is your Atam Karka, listen to your wife. In the case of women, listen to other women. Listen to beautiful ladies. Listen to young girls, especially unmarried girls. Listen to them. अगर आप एक लड़की हैं और आपका आत्म कारका वीनस है, आप किसी भी यंग गर्ल से बात कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे. एंड इफ यू आर मेल, ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर वाइफ. एंड एक रेमेडी भी बता देता हूँ, फ्राइडे अपनी वाइफ को आइसक्रीम खिलाने लेके जाया करो बिना उन्हें बताए कि रेमेडी कर रहे हो. तो अगर आप ये करेंगे तो आपका आत्म कारका और स्ट्रांग होगा एंड योर वीनस विल स्टार्ट गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके, सो दैट्स फॉर द वीनस. एनी डाउट स्टिल हियर? No doubt still here. That's great. Okay. अब मैंने इससे पहले एक बात बोली थी कि आत्म कारका इज अबाउट द बर्निंग ऑफ द सोल्स कर्मास. सर देयर इज अ क्वेश्चन सर. यस सर, प्लीज गो अहेड. सर आपने वीनस का ये बोला ना, जैसे कि वाइफ को आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ. आइसक्रीम ही खिलानी होती है सर? आप कुछ भी मीठा खिला दीजिए. Ice-cream is also more related to Venus, so that's why I always say ice cream. You can go for anything मीठा. ये बताना नहीं, मतलब बिना बताए खिलाना? हाँ, बताना नहीं है कि रेमेडी कर रहे हो. Okay. Okay, what if you are single? Listen to other women, bro. Listen to girls. लड़कियां तो होंगी लाइफ में. अगर लड़कियां भी नहीं है जिंदगी में तो any young girl who is unmarried in your family, जी, she could be your cousin as well. You can हेल्प देम. गोलगप्पे खिलाओ आत्म कारका को. वीनस के तो उपाय बड़े हैं. फ्राइडे को गोलगप्पे खिलाओ वाइफ को, फ्राइडे को गोलगप्पे खिलाओ यंग लड़कियों को. वीनस आत्म कारका स्ट्रांग हो जाएगा. तो वीनस के बहुत उपाय हैं. वीनस आत्म कारका है तो कुछ ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी लेडीज इकट्ठा होती हैं, वहां पर गोलगप्पों का लंगर लगवा दो. 200, 300, 500 के लंगर खिला दो, बहुत फायदा होगा आपको. सो इजी रेमेडीज हैं. अब अगर मार्स आत्म कारका है तो पुलिस वालों को खाना पिलाना खिला दो. जहां पर जैसे एग्जांपल ले लो, कहीं पर यू नो दैट या दैट इज द पोस्ट ऑफ पुलिस, यहाँ पर पुलिस वाले रोज खड़े होते हैं. फीड देम समथिंग गुड.
हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था, किसी ने हैंड रेज किया था अभी। शिल्पी मैम, आप बता दो। हाँ जी शिल्पी मैम, पहले आप बताइए, फिर सोहम जी के पास। पहले सोहम जी आप बता दीजिए। सोम जी प्लीज। जी 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 सर, I had a question. Atmakaraka is in with the highest degree in the horoscope, right? यस, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। Okay. And Rahu, if Rahu is the Atmakaraka, आप बोल रहे हैं कि वो एनिमल्स को फीड करना अच्छा रेमेडी हो सकता है, सर या फिर एनिमल्स उसको को हेल्प करना। फीड करना नहीं, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद एनिमल्स, दोज पेट्स कुड गाइड यू। ओके सर। एंड आत्मकार का नेवर चेंजेस विद टाइम, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा था बीच में। एंड शनि हो तो पेट्स को खिलाना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर एंड दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू वुड स्टार्ट फॉलोइंग योर आत्मकार का। मून सन का भी बता दो। अच्छा, रेमेडी पूछ रहे हैं, तो मून का सिंपल है टेक योर मदर फॉर आउटिंग, एंड सन का भी सिंपल है टेक योर फादर फॉर आउटिंग। और यू कैन हेल्प विद द गवर्नमेंट फंड्स, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े फंड्स होते हैं, आप उसमें हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। अगर ना हो तो कंसिडर समबडी ना, मैंने बताया तो है, कंसिडर समबडी एज योर फादर, कंसिडर समबडी एज योर मदर। हाँ जी डॉक्टर विनय। हेलो जी सर, आपने जो बताया है उसके मुताबिक अगर कोई प्लेनेट उच्च का है नीच का है, वो देखना पड़ेगा कौन सी राशि में बैठा है, नहीं या सर। फिर कोई हाई डिग्री के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं? इस केस में कुछ नहीं देखना पड़ेगा सर। आत्मकार का इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, चाहे वो डेबिलिटेटेड है, चाहे वो एक्सॉल्टेड है, चाहे वो मूल त्रिकोण में है, चाहे वो सेल्फ साइन में है, चाहे वॉट एवर है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। हाईएस्ट तो डिग्री ऐसा विल बी द आत्मकार का। तो ऐसा हो सकता है सर, अगर वो नीच का हो या फिर कोई बैड रिजल्ट दे रहा है प्लेनेट, और हमने ऐसा कुछ किया तो उससे बैड रिजल्ट कम हो जाएंगे या बिल्कुल ऐसा कुछ? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। वो कैसे रिजल्ट कम होंगे? देखो, बैड रिजल्ट, पहली बात, आत्मकार का बैड रिजल्ट तभी देगा अगर आप उसको फीड वेल नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लो, आपका मरकुरी आत्मकार का है और आपकी अपनी सिस्टर से नहीं बनती, या आपकी अपनी बुआ से नहीं बनती, तो आपने अपना आत्मकार का खुद स्पॉइल किया हुआ है, वो आपको बैड रिजल्ट देगा। दूसरी चीज, राशि में रिजल्ट कैसा आता है सर? राशि को मैं हर बार कहता हूं कि अभी ना राशियां क्लियर नहीं है आपको। राशि इज अ वैल्यू। आत्मा की कारका की कितनी वैल्यू है? अगर वो डेबिलिटेटेड है तो कम वैल्यू है, अगर वो एक्सॉल्टेड है तो ज्यादा वैल्यू है। डॉक्टर विद्यासागर, हाँ जी पापा, आप कुछ बताओ इसमें। पापा वुड ऐड समथिंग टू इट। ऐसा है कि इनका ना कंसर्न जो सवाल है उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। आत्मकार का बेसिकली अनमोल ने बताया कि वो प्लेनेट है जो आपका शुरू से लेकर अब तक का है। तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि आपने अब तक जितने भी कर्मास किए हैं वो सारे कर्मास का हिसाब आत्मकारका के ऊपर है। एक इतनी बड़ी बोरी बोलते हैं ना पंजाबी में, जो हम एक पिक्चर देखते हैं कि एक आदमी एक बहुत भारी बोरी अपने कंधे पे उठाकर चल रहा है, बोझ जिसको बोलते हैं, दैट इज आत्मकारका। और माय डियर फ्रेंड्स, आत्मकारका प्लेनेट की जब भी दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो यूजुअली वो कष्टदायक होती है। यूजुअली कष्टदायक होती है क्योंकि देखने में तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा सबसे बढ़िया प्लेनेट है और हमारे बारे में इसको पता है तो ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन इससे ऑपोजिट है। आत्मकारक की जब दशा आएगी तो वो सबसे कष्टदायक होगी। क्यों होगी? क्योंकि कर्मास जिससे जितने ज्यादा होंगे, आप जितने भी कर्मास ज्यादा करोगे, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मा आपको बांधते हैं, ठीक है ना। तो जितने कर्मास आप ज्यादा आपने किए हैं तो उतना ही आपको कष्ट जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आत्मकारका की जब दशा आएगी तो वो कष्टदायक होगी। आत्मकारक जिस राशि में बैठा है उस राशि की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो दैट विल बी आल्सो प्रॉब्लमेटिक। बाकी अनमोल आपको डिटेल में बताएगा। चलो, अब हम पापा ने आपको एडवांस वाला सारा पहले ही बता दिया, तो अब हम आते हैं इससे आगे। जैसा कि मैंने कहा था, बर्निंग द कर्मास
इज इन द हैंड्स ऑफ आत्म कारका. आत्म कारका की प्लेसमेंट उस अकॉर्डिंगली होती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कर्मास बर्न करने हैं. ओके, बिकॉज द सोल सिग्निफिकेटर्स नोज वेयर यू हैव टू बर्न योर कर्मास एट. And if you run away from those karmas, your life would be problematic. But you would have to do those karmas. You can do it smiling or crying, no matter what. But you have to burn those karmas. आप हंस के करिए, आप रो कर के करिए, लेकिन उस घर के रिलेटेड कर्मा तो आपको बर्न करने ही पड़ेंगे. So now I'm gonna start with the circle. So आत्म कारका in the first house. अब अगर आत्म कारका आपके पहले घर में है तो यू हैव डन मिस्टेक्स. यू हैव डन मिस्टेक्स फॉर योर सेल्फ. यू हैव निग्लेक्टेड योर सेल्फ, और मे बी यू हैव लाइक ऑलवेज टेकन योर सेल्फ एज ग्रांटेड. आपने खुद को लेकर के, अपनी फिजिकल शरीर को लेकर के कुछ गलतियां की हैं. एक चीज और लाइन ऐड कर देता हूं. आत्म कारका जिस घर में बैठता है उस घर के रिलेटेड आप गलती कर कर आए हो, ताकि आप इस जन्म में उस गलती को सुधार लो. मौका मिलता है आपको उस मिस्टेक को सही करने का, बाय क्लियरिंग आउट द डीड्स, बाय डूइंग द डीड्स, बाय बर्निंग द कर्मास रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस. So if the Atam Karka is in the first house, you did wrong to yourself, and now you would have to put extra efforts on your physical self. सबसे पहले तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, बिकॉज फिजिकल सेल्फ को संभाला नहीं है ज्यादा, और इस लाइफ में आपको मौका मिलेगा कि आप फिजिकल सेल्फ को संभालो. अब इसमें मैं प्लैनेट नहीं ऐड कर रहा कि कौन सा प्लैनेट हो तो फर्स्ट हाउस में क्या होगा, दैट यू गाइज कैन डीकोड योरसेल्फ. सो अब अगर आत्म कारका सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस इज फाइनेंसेस एंड सेकंड हाउस इज फैमिली, यू वुड बी द पर्सन हैंडलिंग फाइनेंसेस फॉर अदर्स, हैंडलिंग फाइनेंसेस फॉर द फैमिली. आपको नहीं मिलेगा, you won't be getting finances, you would be handling the finances for others, handling the finances for the family. That is the karma you need to burn there. कि आपको घर का पैसा संभालना है. किसी का है यहां पर आत्मकार का सेकंड हाउस में? That person could verify, because I have verified this in many charts. हाँ जी डॉक्टर सीमा. हाँ सर, मेरा है. आत्मकार का is in second Saturn house. in You would, second house. हाँ. So if that is your Adam Karka, you would be handling all the money for the family, handling all the wealth for the family, and even handling the family altogether, क्योंकि second house कुटुंब भी है. So if the Atam Karka is in the third house, you would have to short travel. आपको छोटे छोटे ट्रेवल करने पड़ेंगे, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, because that is where you need to burn your karmas at. You would have to be very supportive to your siblings, especially to your younger sibling. You would need to be supportive there. आपको हमेशा उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी. आपको हमेशा कम्युनिकेशन, you would be the person जिसको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी. So आत्म कारका in the third house, you could be in some job where you need to communicate a lot. Or people who are social media influencers. Yes, you would need to be helping your neighbor as well. We see neighbor from the third house. Okay. Atam Karka in the fourth house, you would be holding the house. You would be the person who would need to work inside your house. आपको घर पर बैठ करके काम करना चाहिए. किसी ने कुछ लिखा है, let me read. Second का लॉर्ड मून is आत्म कारका but sits in ninth house. अरे हम अभी लॉर्ड ले ही नहीं रहे हैं. We are not taking the lord anything. So हम आपका तब जवाब मिलेगा जब आत्म कारका इन द नाइन्थ में डिस्कस करूंगा. So आत्म कारका हम कहाँ थे, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी. वी वर एट फोर्थ, राइट? Fourth house. Yeah, so you have pending karmas related to your mother, related to your house, related to your homeland. अब आत्म कारका इन द फोर्थ हाउस, फॉरेन मत चले जाना. फॉरेन चले भी जाओगे तो वापस आना पड़ेगा. इस जन्म में आओ, अगले में आओ, वो अलग बात है, बट यू वुड हैव टू कम बैक टू योर आत्मा प्लेस जहां पर आपके आत्मा के कर्मास पेंडिंग पड़े हैं. एंड यू वुड नीड टू बर्न दोज कर्मास. You would need to, be in your house. You would be the head of the family. आप वो घर संभालोगे. एंड ऐसे लोगों को अच्छे घर का, बड़े घर का बहुत शौक होता है. Then आत्म कारका in the fifth house.
Fifth house is related to your intelligence. Now you would need to keep on learning all your life. You would need to burn your brain all your life on some kind of learnings. That is Atam Karka in the fifth house. And you would have to burn karmas to your children. अपने बच्चे, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और आपको चांस मिलेंगे. आत्मकार का जहां भी होगा वो काम करने का आपको चांस पक्का मिलेगा लाइफ में. Now if आत्मकार का is in a fifth house, you would be having something in sports, or you would be having some extracurricular activities, and you would be so involved with your children that आप अपनी personal life भूल जाएंगे. Or you would have to keep on learning everything. आत्मकार का in fifth house I have seen with a lot of doctors, because they would have to renew their knowledge every day. And also with astrologers. But astrologers का या 8th में भी होता है. 8th में काफी चांसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजर का आत्मकार का होने के. उसके बाद आत्मकार का इन द 6th हाउस. आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो अपने दुखड़े सुनाने लग पड़ेगा. आपके पास आंटी जी आके बैठेंगी और आंटी जी आपको आके कहानियां सुनाएगी. हाय मेरा पुत्र था मेरे नाल ये करदा वे, मेरी नूह ने मैनू ये कहता. And then you would be feeling so frustrated because you have nothing to do with that, but you would have to listen to it because your Atam Karka is in the 6th house. In the 6th, you would have to take the pressure of others. Enemies, you would have to listen to your enemies. You would have to, stress. You would have to come under stress somehow. Because in the 6th is also about debts. आपकी बैंक में जाकर के बड़ी लंबी लंबी बातें हो जाएंगी, बैंक में बड़ा टाइम स्पेंड करोगे आप. तो 6th में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अननोन लोग आकर के अपने दुखड़े सुनाएंगे. नाउ आत्म कारका इन द 7th, योर वाइफ, यू हैव कर्मास टू योर पार्टनर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, और एनी काइंड ऑफ पार्टनर. इवन इफ ही इज योर बिजनेस पार्टनर, you have the pending karmas there. You have to burn things there. And 7th is also your opponents. Okay, 7th is also your opponents. तो अपने opponents के साथ आपको डील बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डील करना पड़ेगा. अब आत्मकार का 7th में आकर के वेरी गुड मैरिड लाइफ नहीं देता है. जैसे पापा ने बोला है, जहां आत्मकार का आएगा वहां के रिलेटेड पीड़ा मिलेगी, क्योंकि वहां आपको कर्मास बर्न करने हैं. अब अगर आत्मकार का 7th में हो, मेरे पास डिवोर्स केस आ जाए, मैं कभी डिवोर्स रिकमेंड नहीं करता. मैं कहता हूं भैया कर्म पड़ा है, काट लो, काटना पड़ेगा. जितनी पीड़ा अभी सह लोगे, जितना अभी निकल लोगे इस फेज से, उतना आपके लिए अच्छा है. डोंट गो फॉर डिवोर्स इफ द आत्म कारका इज इन द 7th हाउस. But you will see in most cases there will be a situation of divorce arriving. Yes, adjustments matters. Now, Atam Karka in the 8th house, you would be the person learning astrology. You would need to, यहाँ पर भी you would have to take the पीड़ा of other people. आपको दूसरों के गम सुनने पड़ेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी. A lot of doctors also have Atam Karka in 6th or the 8th house. Because they would have to listen to a lot of problem of other people. They have nothing to do with it, but they have to listen to it. अब मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर सुबह से लेकर रात तक लोगों के दुखड़े सुनता हूं. Right? Same thing is with the doctors. A lot of doctors are here. They would have to listen to the problems of other people every day. That is Atam Karka in the 6th and the 8th. Somebody wrote something. 7th house, something related to business. Yes, not with the daily income, but yes with the business. डेली इनकम से भी पीड़ा वैसे आ सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं है, लेकिन इसको मैं उसके साथ रिलेट करना नहीं चाहता, उसके पीछे अलग वजह है. नाउ आत्म कारका इन द 9th हाउस, यू वुड हैव टू एजुकेट अदर्स. हाँ जी डॉक्टर आशुतोष, प्लीज गो अहेड. सर मेरा आत्मकारक 8th हाउस में है, और मुझे सच में आज बहुत जानकर खुशी हुई कि मैं डॉक्टर हूँ और पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आया मुझे आज. जी सर, बिल्कुल. देखो अब यहाँ पर यू वुड हैव टू लिसन टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स एवरी डे, and you would be providing solutions to it, because 8th house is also Sanjeevani, so you are very good doctor. Yeah sir. शफा है आपके हाथ. Thank you sir. जी चलो, गुड लक. हाँ जी अंजू जी, प्लीज गो अहेड. सर 8th हाउस का आत्मकारक ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ करना या प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ देना, ऐसा भी है. यस वो छोड़ देना नहीं, उसके लिए आपको देखो पीड़ा मिलेगी, वहां से फायदा नहीं मिलेगा.
हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब छोड़नी पड़ेगी उनके लिए कि हाँ जी, हो ठीक है, सकता है अब थैंक अगर यू। मार्स है तो फिर प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन बनेगा, अगर मार्स नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, अच्छा जी। राइट? तो अब आत्मकार का इन द 9th हाउस, यू वुड ऑलवेज हैव टू एजुकेट अदर्स, यू आर द पर्सन हु वुड ऑलवेज बी करेक्टिंग अदर्स। आपके सामने वही बंदा आएगा जो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। अब आई यूज टू हैव अ क्लासमेट, वो मेरी इंग्लिश सुधारती रहती थी हमेशा। नाउ आई सॉ हर चार्ट, हर आत्मकार का इज इन द 9th हाउस, she is always trying to correct others. You know, a lot of teachers usually have Atam Karka in the 9th house because they have to teach others, they have to give their, education to others. They are always educating others. And ये लोगों को बड़ी खिंच चढ़ती है कि यार कोई बंदे को ये चीज़ कैसे नहीं पता हो सकती. How could somebody doesn't know this thing? So that is Atam Karka in the 9th house. And Atam Karka in the 9th house, you would have to do the long travels to do your karmas as well, or you would have to go through, what do we say, that you would have to go through some higher degrees, some higher education to burn your karma as well. So अगर आत्म कारका इन द 9th हाउस है एंड दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं समझता हूं कि उनका आधा कर्मा तो बर्न हो ही चुका है. नाउ आत्म कारका इन द 10th हाउस, दे आर द पीपल जिनका ऑफिस ही नहीं खत्म होता. दे आर द पीपल जो सारा टाइम घर पे बैठे हैं, इवन घर पे भी बैठे हैं तो भी ऑफिस में ही बैठे हैं. Sorry, let me see the things here first. Mars 29 degree in the 9th, okay. Sun 29 degree in the 10th. What will be the Atam Karka? So sir, आगे मिनट्स देखिए, 29 डिग्री कितने मिनट है. अगर नहीं है तो फिर राहु को भी माइनस करके देखो. अगर राहु भी नहीं बन रहा तो फिर हम स्थिर आत्म कारका लेंगे. यहाँ पर सूर्य को कंसीडर करेंगे, मंगल को कंसीडर नहीं करेंगे. So now आत्म कारका in the 10th, you have pending karmas with your career, with the workplace, or with the government as well, because 10th house is the government. Okay, 10th house is the government. तो ये लोग वर्क में रहेंगे, ये लोग ऑफिस में रहेंगे, ये लोग घर पर आकर भी ज्यादातर काम करते रहेंगे. एंड दीज आर द पीपल जिनको हमेशा अपने वर्क में ये कंप्लेंट रहेगी कि यार लोड बहुत है, बहुत एक्स्ट्रा लोड है. अब वो एक्स्ट्रा लोड इसीलिए है क्योंकि आत्म कारका इज इन द 10th. यू हैव टू बर्न द कर्मा देयर. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट देम, इट्स फाइन टू हैव दैट लोड. अगर आपके ऊपर लोड नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ का वो पर्पस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. एंड देन अगले जन्म में फिर हम किसी तरीके मिलेंगे, शायद मैं दोबारा से एस्ट्रोलॉजर हूं और आप फिर से कहो कि सर प्रॉब्लम आ रही है. सो आत्म कारका इन द 11th, यू वुड बी हैविंग वेरी बिग फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट फ्रेंड सर्कल इज टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम यू. That friend circle is taking benefit from you, or the elder brother is taking benefit from you. I have seen a lot of property cases and Mars is Atam Karka and placed in the 11th house. ऐसे केसेस में बड़े भाई को प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, छोटे भाई को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है. वहां पर वो बर्न करना पड़ेगा उसको. सो मैंने प्रॉपर्टी के साथ रिलेट इसीलिए किया, मुझे केस याद आ गया एक, अंजू जी ने जैसे ही सवाल पूछा था. नाउ आत्म कारका इन द 12th हाउस. Do not go to abroad if you don't want to struggle in your life. If you want to struggle, go abroad. Although you will be going abroad, but then there will be struggle and you will be crying. So that is the Atam Karka in the 12th house. And also in the 12th you have pending karmas with the unknown things. आप देखेंगे आपको unknown लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी. आपके साथ unknown लोग फ्रॉड कर कर जाएंगे. अब जिनका 3rd और 12th का रिलेशन है और आत्म कारका इज इन द 12th, ऐसे लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं. सो दैट्स हाउ द आत्म कारका वर्क्स. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू अंडरस्टैंड. You should always listen to your Atam Karka. You should be burning the karmas related to the house where your Atam Karka is placed. And with the sign, the power would be seen. कि उसके पास पावर कितनी है. ठीक है. So yeah, that's all about Atam Karka. Anybody has any doubts on it? हाँ जी कोणार्क जी. कोणार्क जी का डाउट मतलब कुछ बड़ा ही होगा. हाँ जी सर. नहीं बड़ा नहीं है, छोटा ही डाउट है सर. यू जस्ट टोल्ड कि 9th हाउस में अगर आत्मकारक है, 12th हाउस का आत्मकारक, मैं दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ. जैसे 9th हाउस में आपने कहा ट्रैवल्स करने पड़ेंगे बड़े, 12th में कहा अगर आप फॉरेन लैंड में जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी. तो बट कर्म बन करने की बात तो हो गई ना कि मतलब 12th में ये करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है. जाना तो पड़ेगा सर, मैं वही कह रहा हूँ, इवेंचुअली तो जाना ही पड़ेगा. बट अगर आपके पास एज एन एस्ट्रोलॉजर कोई आकर पूछ रहा है तो आप उसे पहले बता सकते हो कि यू वुड बी हैविंग स्ट्रगल देयर.
अच्छा, एंड सिमिलरली अगर 9th में जैसे ट्रैवल कर रहा है तो उसमें ट्रैवल में भी उसको मतलब लाइक इट विल बी यस, लॉन्ग ट्रैवल में kind of या suffering. लॉन्ग एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम्स आएगी. ओके फाइन, थैंक यू. Yes, okay. I was born in Africa, but कहाँ गया? Yeah, but live in London since 4 years. Where is your Atam Karka, ma'am? In the 12th house. See, that's the beauty. You would have to go to the foreign land, and her Atam Karka is in the 12th house. Okay, Lagan 26 degree Venus. Ma'am, sir, Lagan नहीं देखना है. Lagan is not the Atam Karka. Lagna is a different thing. Venus is your Atam Karka. Dr. Priyanka ji, right? Priyanka ji. How to get Atam Karka? You cannot get the Atam Karka, sir. And then Atam Karka Sun 7 degree in 9th house. Char Atam Karka is 29. Okay, so 29 degree Venus is your Atam Karka. Venus is your Atam Karka. Okay. Let's have this the hand raise वाले पहले ले लेते हैं. हाँ जी. सोहम जी, please go ahead. ओके, हाँ सोहम जी आप ही बोल लीजिए पहले. सोहम जी आपका नेटवर्क का इशू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप राइट कर दीजिए, आप लिख लीजिए. हाँ जी, आप लिख लीजिए, चैट में लिख दीजिए. हाँ जी, अननोन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. मिस्टर अननोन, आप प्लीज. सर फर्स्टली प्लीज रीनेम योरसेल्फ. सर ये अननोन वाला ना, इट डजंट लुक गुड. हु इज मिस्टर अननोन बाय द वे? सर क्या नेम है आपका? I don't know. I'm just joining the chat for the first time. Possibly इसके लिए हुआ है. I rename myself. My name is Abhijit. Okay. Hi, Mr. Abhijit. How are you? So we had a chat today. Yeah, I remember. So Yeah. What's So your question? you have my question, sir. I had just put that question. So we discussed that question. Just maybe it's good for everyone to understand. So अगर किसी का आत्मकारक मून या सन है और उसके साथ उसकी माँ और पिताजी का रिलेशनशिप खराब हो और माँ पिताजी इज एन अनएथिकल पर्सन. I mean, same goes for Venus, wife, sister, Mercury. मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, होता है. I mean, अनएथिकल है, कुछ खराब काम कर रहा है और आपको उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने का मतलब ये है कि आप उसका खराब जो काम है वो सपोर्ट कर रहे हो. ओके, आप उसके साथ जब भी उसका खराब काम में आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा. राइट? तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपको तो आपके कर्म काटने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे? What is it that you are suggesting? मैं होऊंगा तो मैं वो अनएथिकल चीज भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए अनएथिकल नहीं होगी, वो दुनिया के लिए होगी. ठीक है. दूसरी चीज सर, इफ वी डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद देम, तो मैंने पहले भी बोला है कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, पहले तो ट्राई करो कि आपकी तरफ से रिलेशन अच्छा रहे. उनकी तरफ से रहे ना रहे डजंट मैटर. ठीक है, आपकी तरफ से द थिंग्स हैज टू बी, ठीक है मेरी तरफ से क्लियर है, मेरे लिए उनके लिए, मेरे माइंड में उनके लिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है. उनकी तरफ से है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि मेरी तरफ से पॉजिटिव रहे. दूसरी चीज़, अगर ये भी नहीं होता, बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है, देन यू शुड बी मेकिंग द सीडो रिलेशंस. इन सीडो रिलेशंस फॉर एग्जाम्पल जो हमारे परम पिता परमात्मा है, जिनको हम परम पिता कहते हैं, दैट इज लॉर्ड शिवा. So if somebody's son is Atam Karka and you don't have very good relation with your father, it's totally cut off, go to Lord Shiva and consider him as your father. And if your brother is not having good relations with you and Mars is your Atam Karka, go to Lord Hanuman and consider him as your brother. और you know, लड्डू गोपाल जी घर पे कृष्णा जी रखते हैं, क्यों रखते हैं लोग? वो किसी रिलेशन में ला करके रखते हैं, तो आप उसी रिलेशन में ला करके रखिए जिस रिलेशन में आपके आत्म कारक हैं. So that's how the things would be working in the better situation. Okay, next. Okay, let me see. विधु जी का क्वेश्चन है. ओके नहीं, पहले सोहम जी का क्वेश्चन है. I have Rahu in the 12th house as Atam Karka. Is going abroad unavoidable because I'm scared of struggles abroad as already have a poor health. Okay sir, now Atam Karka in the 12th would be making sure that you spend a lot of money on your health as well. Okay, you would need to spend money on your health here. तो यहाँ पर आप पहले हेल्थ का ख्याल रखिए. अब्रॉड हम थोड़ा बाद में सोचेंगे, उसके लिए वी कैन सी योर चार्ट लेटर, है ना. उसके लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स मैटर करेंगे. सो विदु जी, इज देयर कर्मा जस्ट टू लुक फॉरवर्ड फॉर डूइंग गुड एंड मेक कर्मा इन पॉजिटिव मैनर? यस, जस्ट यार देखो, जो तो साफ ही दिखाई पड़ जाए कि गलत है वो काम मत करो. लेकिन मेरे हिसाब से गलत सही की डेफिनेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है.
जो अगर मैं यहाँ पर शेयर करूँगा तो पूरी कहानी डिफरेंट हो जाएगी. So yeah, that's about. Apologies if I have missed any remedy for Jupiter in the 12th house. Yes, keep donating the knowledge. Keep donating the knowledge you have to other people, and your Atam Karka will be good for you. Jupiter Atam Karka in the 12th house. हाँ जी, Jupiter बता दो दिया sir. You would have to donate the knowledge. Yup. Anybody else had any other questions? कोई डाउट, कोई सवाल जवाब पर्सनल मत पूछो, कुछ और I think with that saying personal will follow. हाँ हाँ. और ये पूछ सर, ये ढूंढना कैसे, मतलब मैं सॉरी आई एम कंप्लीटली न्यू टू दिस. कोई बात नहीं मतलब इसको सर, इसको ढूंढना कैसे सर, कौन सी चीज, कौन सा ग्रह किसमें कैसे, वो कहाँ से ढूंढना सर? आप एक एप्लीकेशन है, मैं पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग और एनी काइंड ऑफ दिस थिंग टू एनी एप्लीकेशन, बट हाँ एक फ्री एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पर प्लैनेट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर आपको दिख जाएगा जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो आपका आतमकार का होगा. हाँ जी. राम मतलब मेरा कैसे पता कैसे लगेगा, मतलब क्या करना है, मैंने कुछ डालना है उसके अंदर? आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा वहाँ पे. Is that all? Yes, that's all. Oh, wonderful. Yeah. हाँ जी, राम प्रकाश जी. राम प्रकाश सर. Thank you. No problem, मनीष जी. हेलो. हाँ जी सर. जी सर. जी सर जी, ये जैसे कि आत्मकार का अगर 12th में जाता है, चला गया सर, ठीक है, और जैसा आपने बताया अब्रॉड में उसको प्रॉब्लम होगी, अगर वो अब्रॉड की सिटीजनशिप ले ले तो उसका तो होम टाउन हो गया, होम कंट्री हो गई. नहीं हुई सर. बर्थ प्लेस डॉक्यूमेंट मैटर ही नहीं करता है, एक पासपोर्ट डिसाइड नहीं करता. वी डोंट टेक एनी पासपोर्ट थिंग. होम टाउन क्या, बर्थ प्लेस क्या है सर? ओके. बर्थ प्लेस मैटर करेगी, है ना. तो जन्म तो यहीं का रहेगा ना, चाहे वो डॉक्यूमेंट कहीं का भी बनवा लें. करेक्ट जी. हाँ जी. नेक्स्ट. बट या दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन सर. ये बहुत सारे लोगों का सवाल रह जाता अगर आप ना पूछते तो. वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड. हाँ जी अमिता जी, गो अहेड. हाँ, ये होम टाउन पे भी डिपेंड करेगा क्या? अगर इंडिया में ही रहते हुए दूसरे टाउन में रहते हैं, देखो दूसरे में होम टाउन के लिए 4th हाउस में अगर है किसी का, बिल्कुल करेगा. अगर 4th हाउस में है तो यू वुड हैव टू स्टे एट द होम, बट यू वुड बी इन द ट्रबल एट द होम, बट यू वुड नीड टू स्टे एट द होम. आपको देखो होम टाउन की तो बड़ी. हाँ. अगर कोई मान लो लड़की है, उसकी मैरिज हो गई, वो ससुराल में दूसरे टाउन में है अपने, बिल्कुल, तो फिर वो कैसे? देखो मैरिज के बाद लड़की का घर 4th हाउस ही होता है, वही होता है, वही 4th हाउस हो जाता है, चाहे वो कहीं भी हो. बिकॉज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर फैमिली नाउ. आप जब वो मैरिज होती है ना, जब वो शब्द आप, हम एक्चुअली ना मैरिजेस हमने ना ज़्यादा ही वो बना दी. मतलब मैरिज आज की डेट में एक शोशा है, शराब चल रही है जी मैरिज में, इधर चिकन चल रहा है. मैरिज इज अ सेक्रेड थिंग टू हैपन, राइट? टू सोल्स कमिंग टुगेदर, दैट इज अ वेरी सेक्रेड थिंग टू हैपन, बट वी हैव जस्ट मेड इट वेरी अनहाइजीनिक थिंग टू, जो मैं कहूँगा. तो मैरिज में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, जब वादे होते हैं, बातें होती हैं, जब आप उन्हें बहुत गौर से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी में और इनमें कितनी चीज़ें जो हैं उसमें क्या कहते हैं तालमेल में हैं. कि हाँ वो लड़की उसको अपना 4th हाउस मानती है कि हाँ अब से वही मेरा घर होगा, और वो बताते हैं कि ये इस लॉकर की चाबी दे दो इनको, राइट? घर की चाबियां इसके पास रहेंगी, लॉकर की चाबी. तो एक एक शब्द आप जब आप शादी किसी की देखें तो वो एक एक लाइन जो बोली जा रही है वो बड़ी प्यारी है, उसमें हर चीज में एस्ट्रोलॉजी है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसकी वहाँ की हो जाती है. यस, यू एक्सेप्ट इट एज योर हाउस ना. अगर आपने अभी तक उसको अपना घर ही नहीं मानना है तो फिर शादी काहे की हुई? फिर तो आप अभी पीछे जी रहे हो, फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं. हाँ जी डॉक्टर विनय जी प्लीज. जी सर, ये जो प्लेनेट जो होते हैं उससे हम गोचर में भी उसके ऊपर देख सकते हैं या सर, गोचर में नहीं? आत्मकारका को गोचर में नहीं देखना है. अच्छा, आत्मकारका को अगर आप गोचर में देखने लग पड़ोगे ना तो रोज आत्मकारका की जगह चेंज होगी, रोज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी. अब एग्जांपल ले लो, किसी का चंद्रमा आत्मकारका है, वो तो हर एक दिन बाद दूसरे घर में घूमेगा, तो दैट वुड बी कॉजिंग ट्रबल, है ना? तो ऐसा नहीं है. हाँ जी अंजू जी. सर जैसे 9th घर में आपने बताया अगर आत्मकारक हो तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है,
तो इसके साथ हम कुछ और भी चीजें कि मंदिर जाना या पूजा पाठ में गलतियां होना। यस बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन आप करोगे फिर भी। ओके, पूजा पाठ में गलतियां होना और या अपने बॉस के रिगार्डिंग गलतियां होना भी वो भी हो सकती है, फादर के रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। ओके राइट, तो देखो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, लुक एट द मून नॉट एट माय फिंगर। मैं सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग दिस इशारा कि वो देखो, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ जी संदीप जी, मनीष जी पहले मनीष जी। सर आपने सॉरी थैंक यू फॉर द ऐप। मैं ऐप है मेरे पास ऑलरेडी, तो उसमें किस जगह पे सर मैंने जाना उसके अंदर? सर आपने अपने डिटेल्स डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ? नहीं, कहाँ पे डालना है सर? मतलब वहाँ ओपन कुंडली पे क्लिक करो सर, वहाँ कुछ होगा यार। एक्चुअली आई डोंट यूज फ्री एप्स टू बी ऑनेस्ट। ओके न्यू कुंडली सर, न्यू कुंडली। ठीक है सर, जी ठीक है सर, थैंक यू। संदीप सर। हाँ सर जैसे आपने बताया मतलब आत्मा कारक इन अ पार्टिकुलर हाउस, तो वो आत्मा कारक का जो लॉर्डशिप है, जो हाउस का जो उसके पास लॉर्डशिप होगा, उसका भी इफेक्ट देगा या बस जहाँ बैठा है वहां पे बस उसी हाउस का इफेक्ट देगा? सर देखो, लॉर्ड के साथ आत्म कारका को लेना, अब एग्जांपल ले लो, अगर तो सूर्य और चंद्रमा से हटकर है कोई भी और प्लैनेट है तो सबके पास दो दो साइंस हैं, राइट? अब दो हाउसेस की ऑनरशिप एक आत्मा के पास नहीं हो सकती। एक आत्मा एक समय पर एक शरीर में रह सकती है, दो शरीरों में नहीं रह सकती। तो द प्लेसमेंट ऑफ द हाउस से मतलब प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट रादर देन द साइन ऑफ दैट प्लैनेट। ओके ठीक है। और सर जैसे चार्ट देखते समय मतलब आत्मा कारक को मतलब कब किस लेवल पे देखना चाहिए? लाइक वैसे लग्न से हम लोग प्लैनेट्स देखते हैं, फिर लाइक इसको ब्लेंड कैसे करेंगे मतलब जब देखते समय चार्ट में? सर वही बात है ना, 40 मिनट में एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई जा सकती, पर हाँ मैंने आपको एक नज़रिया दे दिया है कि इसको आप इस तरह से ब्लेंड मैंने बताया तो है, इतना सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर 12th हाउस में है तो उसको बता दो अब्रॉड में प्रॉब्लम्स होंगी, 4th हाउस में बता दो कि हाँ जी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी, 2nd हाउस में बता दो कि जी घर की वेल्थ आप संभालने वाले हो। नहीं सर, जैसे बाकी प्लैनेट्स है ना, लाइक लग्न से हम लोग लग्न से देखते हैं उसका पोजीशन, फिर मून से देखते हैं पोजीशन, वो खुद आत्मा कारक है। आप खुद आत्मा कारका को भी लगन बना करके चार्ट बना सकते हो अगर आप जेमिनी सूत्र इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ये जेमिनी का सूत्र है, तो आप स्वयं आत्म कारका को लगन बना करके उससे 6, 8, 12 कौन जा रहा है, उससे 4th कौन जा रहा है, उससे 9th कौन जा रहा है, बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, एक फैक्टर नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, उसके बाद किसने किया था यार? है महुआ मैम, आपने करा था पहले। हाँ जी डॉक्टर सर, मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, इसलिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी थोड़ा पहले खिटमिट सा लग रहा है सर, सॉरी। आपने बोला होगा बट मैंने मिस कर दिया। मार्स अगर आत्मकारक है, 9th इसमें है, तो क्या मैंने आपने क्या बोला था, मैं लिखना वो चाहती थी। आपके हस्बैंड आपसे घर से दूर से आए हैं? हाँ सर। राइट, या दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ इट। तो आत्मकार का जब 9th में जाता है, स्पेशली जब मार्स जाता है, तो इन द फीमेल चार्ट मार्स इज अ हस्बैंड, तो हस्बैंड वुड बी कमिंग फ्रॉम अ फार अवे प्लेस बिकॉज 9th इज अ लॉन्ग ट्रेवल। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आत्मकार का इन द 9th विच इज मार्स, योर हस्बैंड इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं हमेशा से, और 80% ऑफ टाइम ये फ्री ज्ञान होता है। ठीक है, he would be giving suggestions which other person is not asking for because Mars is aggression, Mars is a quick energy, he just wants to explain everything. So that is about your Atmakarka Mars in the 9th house. And जब भी अगर आपका Mars Atmakarka है, you have very much pending karmas for your husband. तो आपको बहुत जगह पर झगड़े भी होते होंगे, बहुत जगह पर फायर भी आती होगी, but you have to go through it no matter what you do. Okay? Okay sir, thank you sir. अंजू मैम। हाँ जी सर, अभी आपने कहा सूर्य और चंद्र क्योंकि एक ही राशि के होते हैं तो उनकी लॉर्डशिप साथ में ली जा सकती है? नहीं ली जाएगी, तो कैसे लेनी है सर? नहीं ली जाएगी। मैंने समझाने के लिए बोला था कि वहां तो आप एक एक राशि ले लोगे, वहां तो एक एक शरीर है, लेकिन जहां दो दो राशियां आती हैं तो दो शरीरों में एक आत्मा नहीं रह सकती ना, तो वो मैंने समझाने के लिए बोला था। मेटाफोर। हाँ जी विदु जी। So firstly, hi everyone, and Anmol, this session is very informative. Thank you. So Jai Mahakal, मेरा actually कोई question नहीं है, but what I analyzed from this session is like
What main matters is like अगर हम अपने deeds अच्छे करते जाएंगे तो ग्रह अपने आप ही automatically अच्छे हो जाएंगे. To be honest, Yes, we have to be responsible, we have to be patient, and just मर्जी वे के relationship, whether with family, whether with friends, whether with anyone else, and जैसे as per today's scenario, boyfriend and so-called girlfriend things. So yeah, like अगर हम अपना कर्मा अच्छा करते जाएंगे तो automatically हमारे ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे. Yes. Isn't it? Yes, definitely. This is 100% true. And in fact, Yes. we are doing 2 sessions. एक session होने वाला है how to spoil your planets. And in that we will be doing कि how we are spoiling our planets in daily life, right? हम रोज किस तरह Yes. से अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारे planet spoil हो रहे हैं. Right, Kunal ji? This is in the Right, notice, right. This is on the list. Yeah, and second one is how to improve your planets, जो कि उसी का ही पार्ट होगा कि लाइफस्टाइल से आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हो. ऑटोमेटिकली ग्रह सही हो जाते हैं. Right. Yes. And in the marriage level, like when a girl जब उसका surname change हो जाता है तो adjustments होती हैं, understandings होती हैं, so automatically ग्रह अच्छे हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, it's nice to see you here. I know her personally, so thanks for joining. It's good to see your interest towards astrology. राम हाँ जी, राम जी. हाँ जी, राम जी. ये स्पेशली जो मून है, स्पेशली जब around 40 or 50 around age, definitely mother and mother-in-law both are hardly people have. और मून जब बहुत ही फास्ट मूविंग है, उससे की कैसे डील किया जाए? सर देखो, डील कैसे किया जाएगा, क्या मतलब आप थोड़ा सवाल और क्लियर करेंगे? नहीं, मतलब कहने का मतलब आत्मकार का जो भी बात, जो मून है एज ए प्लैनेट, तो आफ्टर मदर मदर नहीं है, मदर लॉ भी नहीं है, ठीक है, सम सिचुएशन कम. सर दैट इज व्हाई हमारे पास 9 देवियां हैं. माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, हमारे पास माँ दुर्गा हैं. Why we call her Ma? Because Ma is related to moon. Consider some devi as your mother. Start worshipping her. उनके लिए सेवा करनी स्टार्ट करो. आपको ऑटोमेटिकली you will be improving your own आत्म कारका if you don't have your mom. Right? हाँ जी मनीष जी, आपको मिल गया ऐप में? मैंने मम्मी को फोन किया. मेरे टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, तो सर एग्जैक्ट टाइम ना बताओ. फॉर एग्जांपल सिर्फ 9 बजे है या 10 बजे ऐसा बताओ सिर्फ, तो कैसे वो ऑलमोस्ट सेम सर. अभी के लिए आप निकाल लो, बट हाँ वैसे BTR होती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द तो ये आत्मकार्य का कहाँ पे मिलेगा मुझे? क्या सर उसमें I think I'll better explain. You can contact me in person. I think ठीक है, will be like. ठीक है, thank you. हाँ जी राशिद जी. राशिद यस सर, वो मैं पूछ रहा था कि हाउ स्ट्रॉन्ग जो पेंडिंग कर्म है वो डिपेंड करेगा उस प्लेनेट के डिग्री या फिर वो राशि एंड ऑल उस पे, क्या लाइक हाउ टू चेक कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो प्लेनेट जो आत्मकार का सर है. आत्मकार का तो स्ट्रॉन्ग है ही है. आत्मकार का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो अगर आत्मकार का हुआ है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आत्मकार का मीन्स द किंग एंड नोबडी इज अबव द किंग. इवन इफ द किंग इज इन द डेबिलिटेटेड प्लेस, इट इज द किंग. Okay, even if the king is in the debilitated position, he is the king no matter what. ठीक है, राजा राजा ही रहता है. राजे को आप चेंज नहीं कर सकते, राजे की तहसीर चेंज नहीं कर सकते. किंग इज इगोइस्टिक. इवन इफ ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ही इज इगोइस्टिक. ठीक है, तो आत्मकारका इज द किंग एंड वी कैनॉट कंपेयर एनीथिंग विद द किंग. ऑल्दो वी कैन सी द साइन कि हमारे कर्मास कितने पेंडिंग है भाई, कि हमने साइन के हिसाब से कितने के एफर्ट्स डालने हैं. ठीक है. सो या डू यू डू रीडिंग्स? यस आई डू रीडिंग्स. सो यप, इट्स डन आई थिंक. कुनार जी, गुड रहा सेशन आज, छोटा था. हाँ जी बिल्कुल बढ़िया. इट शुड बी क्रिस्प एंड नाइस एंड फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर. अच्छा सागर पापा. हाँ जी गो अहेड. हाँ जी अंकल. कुनार के आत्मकार का तो आपने बहुत अच्छा करवा दिया. हाँ जी. अब ना एक प्लेनेट होता है जो आत्मकार का के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. हर चीज का 2 पहलू होते हैं, तो वो कौन सा होता है? दरकारक. नो, ऑपोजिट.
तासीर में ऑपोजिट, तासीर में। डिग्री में नहीं, डिग्री में तो ऑफ कोर्स यू आर मैं तो राइट, डिग्री में ले रहा था। डिग्री में यू आर राइट, नॉट ज्ञाति कारक कौन सा यस है ना? यस कौन सा यस। बोला भैया ने? ज्ञाति कारक, गनाती कार का ना? हाँ ज्ञाति। तो एक ना ज्ञाति कारक एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सारी हमारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दर्शाता है। तो अगर उस पे भी एक अनमोल की क्लास हो जाए तो जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है लगभग सभी लोगों को ना एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि उनका मतलब जो ऑपोजिट है, जो कष्ट देने वाला है, जिसकी बात हमने सुननी ही नहीं है, ठीक है, आत्मकारक की तो हमने सुननी है ना। बिल्कुल तो एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी बात हमने सुननी ही नहीं है, वो दैट इज द गनाती अच्छी कार लगे। का। नेवर लिसन टू योर गनाती कार का। ज्ञाति कारक। This was good. You know, if we start following our Ganati Karka, everything opposite will be happening. And trust me, most of you and even me before learning astrology was or you know is listening to your Ganati Karka. We always neglect Atam Karka. वो दो फ्रेंड्स गए वहाँ खेलने कनाडा में, वो क्या खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कसिनो। तो वो कसिनो, वो एक इतनी बड़ी अमाउंट जीत गया, दूसरा जो उसका मित्र था वो उसका ज्ञाति कारक था। तो लगा दे यार, एक और लगा दे यार, उसके कहने पर उसने लगा दिया। Mars Ganati Karka in 11th house. You won't be winning through gamblings if you keep listening to your Ganati Karka. So yeah. अच्छा, definitely sir, we can line it up, no problem sir. हाँ, we can line it up. Okay, अब ना मैं थोड़े दिन अवेलेबल नहीं रहूँगा. I am out of country for few days. Country मेरे को actually कहने की आदत है, out of city, because I am mostly out of country. So yeah, I'll be out of city for few days, probably 2 weeks or 1.5 week. तो हम इस वीक में कोई लेक्चर नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीक के एंड में आकर के हम कोई ना कोई लेक्चर जरूर जल्दी से करेंगे। सो स्पेलिंग ऑफ गनाती कार का। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, व्हाट इज द मोर वैलिड डेट सर्टिफिकेट और द रियल वन? सर वही बात आ गई ना, पासपोर्ट वाली। पासपोर्ट किसी भी कंट्री का हो, वी डोंट केयर, हमें रियल डिटेल्स चाहिए। सो रियल मैटर्स, सर्टिफिकेट पे तो जो मर्जी लिखवा लें हम, है ना जी। सो यप, एनीबडी हैज लास्ट क्वेश्चन? शिया मैम का लास्ट क्वेश्चन है जी। सर आपने एक आप जैसे जो बता रहे हो ना, फॉरेन लैंड ऐसे बोलते हो आप, तो अभी जैसे किसी की बर्थ प्लेस सपोज मुंबई है फॉर एग्जांपल, और अगर वो किसी दूसरे स्टेट में है, इंडिया में ही है, तो उसको भी हम फॉरेन की तरह ही समझेंगे कि फॉरेन मींस एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए? फॉरेन मींस आउट ऑफ द कंट्रीज बाउंड्री, इसको हम 9th मानेंगे, अवे फ्रॉम द होमलैंड मानेंगे। लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल ले लो, हमारे फेमस प्लेसेस हैं। हमारा फेमस है, दिल्ली है, देहरादून है, बॉम्बे है, कोई भी कोलकाता है। वी ऑल नो सम वेरी फेमस स्टेट्स एंड फेमस सिटीज ऑफ इंडिया, राइट? सो इफ इट इज़ अ नोन लैंड, इट वुड बी द 9th हाउस। बट इफ इट इज़ द अननोन लैंड, आप कोई विलेज में जा रहे हो जिस विलेज का आपने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था, तो उसमें कहीं ना कहीं 12th हाउस की झलक आ जाएगी, बिकॉज दैट वुड बी गोइंग टू द अननोन प्लेस। ओके, सो दैट्स हाउ वी डू। बड़ी सारी चीजें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट या इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप दिस वाज द सैटिस्फैक्टरी आंसर। ओके सर, थैंक यू। चलो, दैट्स ऑल। रेमेडीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल। ओके अनमोल जी, जय श्री राम। टाटा, जय श्री राम। बिल्कुल 22 तारीख को, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। 22 तारीख को दिवाली बनाओ सारे जने। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बाय बाय। थैंक यू सर।